السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear sisters. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 29 سورت الملک آیت 23 سے تلاوت ہوگی انشاءاللہ. میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. سورت الملک پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے. kindly share the screen. پچھلی کلاس میں جی آپ نے ایک ہوم ورک دیا تھا ہم لوگوں کو. Yeah, I'm glad that you are reminding me. Yeah, I remember. الحمدللہ. تو میں پوچھتی ہوں آپ سے ہوم ورک کے بارے میں. آپ ریڈی رہیے. تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں بیکاز جو پچھلی آیت ہم نے کی ہے 23 سو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن اللہ نے ہم سے پوچھا ہے اور اس کویشچن کو ہم بالکل نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. تو 23 میں ہم نے پڑھے قل هو الذی، کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ. الذی، وہ جس نے انشأکم، اس نے پیدا کیا تم کو، وجعل، اور اس نے بنایا تمہارے لیے، السمع، سماعت یعنی کان، ہیئرنگ، اور آنکھیں یا ویژن، والافئدہ، اور تمہارے دل، یور ہارٹ. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم ہے، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا، پیدا کیا، اور کیا خوب بنایا.
اور جو آنکھیں اور کان اور دل دیے اسپیشلی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باوجود تم اللہ کا کتنا کم شکر ادا کرتے ہو. دیٹ مینس اٹ از اے فیکٹ، اٹ از اے فیکٹ کہ ہم اللہ کا کتنا کم شکر ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھتے تھے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہے نا؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ کون بتائے گا مجھے؟ کون بتائے گا اس کا میننگ؟ بولو. کوئی نہیں؟ ارے can't you hear me? اتنے لوگوں کے ہاتھ اوپر ہے نا. شمیم، ثنا، ہاں بولو کیا مطلب ہے اس کا؟ انجم آپ بتائیں. روحی نازمی، انمیوٹ کیا میں نے آپ کو، جلدی جلدی جواب دیجیے پلیز. وی ڈونٹ ہیو آل ڈے. ہاں السلام علیکم. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر ہے اللہ آپ کا کہ آپ نے موت کے بعد ہمیں پھر سے زندگی دی. ویری گڈ. تو شکر کے ساتھ صبح ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم لوگ بھی اس دعا کو پڑھ تو لیتے ہیں صبح میں، ہے نا؟ ہم سب کو یاد ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور پھر تھوڑی دیر میں ہماری کمپلین شروع ہو جاتی ہے کہ کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلا شکر یہ کہ اللہ میں زندہ ہوں، تو نے مجھے زندگی دی اور ابھی بھی میں زندہ ہوں. نمبر 1. نمبر 2، میرے کان بھی ہے، میری آنکھیں بھی ہے، میرا دل بھی ہے. اب مجھے ہاتھ اوپر کر کے بتائیے کتنے لوگ ہم میں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے کان بھی دیا ہے، آنکھیں بھی دیا ہے اور دل بھی دیا ہے. کرتا ہے کوئی شکر ادا؟ Have we ever done that? یس فاطمہ بولیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کرتی ہوں، صبح اٹھ کے بولتا ہوں اللہ تو نے مجھ کو پھر سے زندہ کیا اور میں یہ آنکھ سے دیکھ سکتی ہوں، ہاتھ سے پیر سے چل کے میں اپنے واش روم تک جا سکتی ہوں، سب کچھ کر لیے تیرے شکر اللہ، اور ایسے سارا الحمدللہ برقرار رکھ. الحمدللہ. ویری گڈ فاطمہ، الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے ہم لوگ جو آکسیجن بریتھ کرتے ہر روز، تو ایک دن میں آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کتنی سانس لیتے ہیں؟ ذرا اسکرین پر دیکھیے، مجھے بتاؤ کنیز کتنا ہم آکسیجن بریتھ کرتے ایک دن میں؟ 2000 gallons a day. کین یو امیجن؟ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اٹ از انف ٹو فل اپ اے نارمل سائزڈ سوئمنگ پول. ایک سوئمنگ پول دیکھے اس میں کتنا پانی بھرتے ہیں، تو وہ سوئمنگ پول بھر جائے اتنا آکسیجن ہر روز میں اکیلی اتنی سانسیں لیتی ہوں. تو کہاں ہے کیا اتنا شکر ادا کیا اللہ؟ کب کرتے ہیں شکر ادا؟ اچھا اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتے، نہ گھر والوں کا کرتے، نہ رشتہ داروں کا کرتے. بس ہماری شکایتیں 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 ختم ہی نہیں ہوتی. کمپلین وی آر اے کمپلین باکس ہول ڈے. کبھی زبان سے نہیں کرتے تو دماغ میں چلتی رہتی ہے شکایتیں. اس کے بارے میں اس نے مجھے ایسا بولی، اس نے مجھ سے بات ہی نہیں کی، اس نے مجھے یہ نہیں دی، اس نے میری طرح دیکھی نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں تو بہت ہے. بیٹے نے ایسا بول دیا، بہو نے ایسا بول دی، ہسبینڈ نے ایسا کر دیا، اور باقی لوگوں کی تو بہت شکایت ہے. تو جس کی زبان پہ اور دل میں پورا دن شکایتیں ہی ہو، اس زبان اور اس دل میں شکر کہاں سے آئے گا؟ there is no place for positivity when there is complete negativity. اچھا شکر کے بارے میں ایک بہت اچھی بات بتائی
ایک اسکالر نے کہ ہم کہتے ہیں شکر، شکر ہماری زندگی، ہمارے دل دماغ، ہمارے جسم میں مٹھاس بھر دیتا ہے. شکر کا جذبہ ہمارے دلوں میں مٹھاس بھر دیتا ہے، پازیٹیوٹی بھر دیتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں شکر، اور انگلش میں شوگر، اور ہندی میں شکر. شکر، شوگر، شکر. تو شکر کا جذبہ میٹھا ہے، وہ مٹھاس بھر دیتا ہے. اور شکوا کڑوا ہے، کڑوا. کریلا جیسے ہوتا ہے نا، کریلا پھر بھی ہم لوگ کھاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کڑوا، اتنا کڑوا، لائک اے پوائزن. تو وہ شکایت، کمپلینس، ناشکری ہماری زندگی میں کڑواہٹ بھر دیتی. آپ دیکھیے اپنا چہرہ، جب آپ شکایت کرتے ہیں اپنے چہرے کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو دیکھو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور جب غصہ آتا ہے، کمپلینز ہوتی ہے، تو آپ کا نہ دماغ ٹھکانے پہ رہتا ہے، نہ زبان ٹھکانے پہ رہتی ہے، نہ دل ٹھکانے پہ رہتا ہے. اور پھر جو آپ ہاتھوں سے کرتے ہو نا کام بھی، وہ کام میں کیسے ہوتا ہے وہ کام؟ بتاؤ ذرا پلیز، تھوڑا سا امیجن کر کے. آپ سمجھو کچن میں کام کر رہے ہو اور آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ شکایت کر رہے ہو، یو آر ان دا موڈ آف complaining. Sana, how are you working in the باجی kitchen then? کام بھی گڑبڑ ہوتا ہے کیونکہ کنسنٹریشن تو الٹی سیدھے چیزوں میں لگا ہوتا ہے. پھر ہے نا کھٹاڑ پٹاڑ، یہ زور زور سے برتن رکھ رہے اور چمچ زور سے چلا رہے، پھر شکر کا ڈبہ کھلا اور وہ گر گئی، تیل ادھر اوندھا ہو گیا، ہوتا ہے ایسا، نمک زیادہ کم ہو گیا، ساری گڑبڑ ہوتا ہے نا. ہاں باجی، اسپیشلی جب بچوں پہ غصہ آتا ہے تو بہت گڑبڑ ہوتا ہے کام. کتنا غصہ ہوتا ہے، اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے ہم سارا کام الٹا پلٹا بھی کر دیتے ہیں. تو یہ ناشکری، اچھا یہ تو ہماری لائف میں ہم کو نظر آنے والی چیزیں ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ناشکری کیا ہے. آپ کو حدیث بتاؤں گی میں، تب ہماری، اللہ کرے کہ ہماری ناشکری کم ہو جائے. کہ ناشکری، ہاں یہ دیکھیے، یہ والی حدیث دیکھیے. ہاں استغفر اللہ، یہ قرآن پاک میں آتا ہے، حدیث نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ناشکری کرو گے، اگر ناشکری کرو گے تو سمجھ لو کہ میرا یعنی اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو ناشکری، کمپلین کرنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے جو بڑا سخت ہے، سیویئر پنشمنٹ ناشکری کرنے پر. تو جہاں ناشکری ہوتی ہے وہاں تو شکر ہوتا ہی نہیں ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ اس کو میں، اس آیت کو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتی. نہ ایگزامپل میں اپنا لوں گی نہ کسی انسان کا، میں قرآن پاک کا ایگزامپل لے کے آپ کو بتاتی ہوں. سورت سبا، سورت سبا کا ایگزامپل ہے، آیت 15 to 17 اس کا ریفرنس ہے. قوم سبا ایسی قوم تھی، یمن کی قوم تھی، یمن، اوکے، کہ ان لوگوں کے پاس اتنی پراسپیرٹی دی اللہ نے، اتنی نعمتیں، کہ یہ قوم سبا جہاں کھڑے ہوتے تو دونوں سائیڈ گارڈنز، وہ جہاں بھی چلتے جاتے دونوں سائیڈ ان کے گارڈنز، نیور اینڈنگ باغات، ختم ہی نہیں ہوتے، اور اتنے فروٹس آتے اس پر، اتنے فروٹس آتے. سو دے ور سو ویلدی اینڈ پراسپرس اینڈ رچ، اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے، جہاں دیکھتے وہاں پھل ہی پھل. فار ایگزامپل کبھی آپ لوگ پنجاب سائڈ گئے ہو، ہریانہ سائڈ گئے ہو انڈیا میں، تو آپ دیکھتے ہو ہر طرف آپ کو کیا دکھتا ہے؟ ہر طرف لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آتے ہیں. تو یہ کھیتی باڑی، یہ فروٹس، یہ گارڈنز، قوم سبا پر اتنی نعمتیں تھی. آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سا میں نے ریسرچ کیا کہ یمن was the first place, the region جنہوں نے فرسٹ ٹائم ڈیمز بنائے تھے. ہمارے یہاں جو پانی کے ڈیم ہوتے وہ سب سے پہلے یمن میں لوگوں نے کنسٹرکٹ کیے، اللہ کی توفیق سے اریگیشن سسٹمز بنائے. تو جتنا زیادہ پانی ہوگا اتنا زیادہ کھیتی باڑی، گارڈنز ہوں گے، رائٹ. اب کیا ہوا، پھر یہ لوگ بھی ایروگنس میں آ گئے، تکبر میں آ گئے اور ناشکری کرنے لگے.
अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, तो फिर अल्लाह का अजाब आया। ये जो हदीस आ रही है ना, अगर ना, ये जो आयत आ रही है, अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। तो उन पर आया अजाब, वो जो डैम बनाए थे ना, वो डैम ही फट गए, और ऐसा सैलाब, ऐसे ट्रेमेंडस फ्लड्स आए कि सब कुछ हलाक बर्बाद हो गया। व्हाट वाज द रीजन? नाशुक्री, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, क्रेडिट अल्लाह को नहीं दिया, बल्कि क्या किया? आई मी माई सेल्फ, अस्तगफिरुल्लाह। अब 1 मिनट के लिए कौमे सबा को अपने दिमाग से हटा के अपने आप को रख के देखेंगे। अपने घर में हो ना, आप सब बैठे हुए, जरा अपने घर में अपने इर्द गिर्द नजर घुमाओ, नेमतें नेमतें नजर आएगी। आईने के सामने बैठ जाओ, अपने आप को देखो, नेमतें नेमतें नजर आएगी। अभी सोचो कि अगर हम शुक्र अदा ना करें, और कौमे सबा की जगह पे खुद को रख के देख लो, अस्तगफिरुल्लाह, नौजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर हम कहते हैं कि क्यों हम पे मुसीबतें आती है, क्यों बीमार होते हैं, क्यों तकलीफें आती है? क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा बहुत कम करते हैं। और इस आयत में अल्लाह ने फरमा दिया सूरह मुल्क में कि कितना कम है जो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते। अस्तगफिरुल्लाह। That was one example. Any comments? Quick. जल्दी, कोई नहीं बोलना चाहता है, then I'll move ahead. अब्बा जी ये दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला तो मुझे अपनी नाशुक्री से बचा और हमेशा शुक्र करने वाला बना। आमीन। आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्यूटीफुल दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। क्या फरमाया? हर नमाज के बाद या हर नमाज के अंदर भी हम ये दुआ पढ़ सकते। मेरे पीछे कहो कनीज, अल्लाहुम्मा, कहाँ गई कनीज? अल्लाहुम्मा अइन्नी अइन्नी अला जिक्रिका अला जिक्रिका व शुक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। व हुस्न इबादतिका। आमीन। इसका मतलब क्या है? या अल्लाह, तू मुझे तौफीक अता कर, तू मुझे तौफीक अता कर कि मैं क्या करूं? अला जिक्रिका, मैं तेरा जिक्र करती रहूं, वो शुक्रिका, और तेरा शुक्र अदा करती रहूं, वो हुस्न इबादती का, और मैं तेरी खूबसूरत ब्यूटीफुल इबादत करती रहूं, इसकी तू मुझे तौफीक अता कर। ठीक है, अभी सूरे निसा में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरे निसा में? गौर से सुनिए। हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह क्या करेगा तुमको अजाब देकर? अल्लाह तुमको क्यों अजाब चखाएगा, क्यों पनिश करेगा? अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और अपने ईमान पर जमे रहे, तो अल्लाह तो बहुत कदरदान है, शाकिर है, अप्रिशिएटिव है। लिख लीजिए आप इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला हमसे पूछते हैं कुरान में, सूरह निसा आयत 147 में, कि अल्लाह तुमको क्यों अजाब चखाएगा? क्या अल्लाह को तुम्हें अजाब चखाने में कोई मजा आएगा? नो। क्यों चखाएगा अल्लाह तुमको अजाब? लिख लीजिए क्वेश्चन। फिर अल्लाह ताला आगे खुद फरमाते हैं, हाँ, अगर तुम शुक्र अदा करते रहे और ईमान पर जमे रहे तो अल्लाह कदरदान है, अप्रिशिएटिव है। तो हम है ना, एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे उस शुक्र का कदरदान है, अप्रिशिएटिव है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढ लिए। हमारे शॉर्टकट्स क्या है, कौन बताएगा? कौन सी शॉर्टकट की बात कर रही हूँ मैं? हम लोगों ने कौन सी शॉर्टकट्स ढूंढ लिए? जल्दी बोलो। बाजी हम लोग अपने अपने टैलेंट को ही दे देते हैं कि हाँ मैंने इतना अच्छा काम किया। यू कांग्रेचुलेट योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ कांग्रेचुलेटिंग अल्लाह ताला।
ہاں لیکن میں جو شارٹ کٹ کی بات کر رہی ہوں شمیم، تو ہم نے شارٹ کٹس ڈھونڈ لیے، ہم بیٹھ جاتے تسبیح لے کے، ہم لوگ پڑھ لیتے 100 ٹائمز سبحان اللہ، 100 ٹائمز الحمدللہ، 100 ٹائمز اللہ اکبر. آف کورس یہ تسبیح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، لیکن ہم نے اس کو ریچول بنا لیا ہے بس. تو اس تسبیح میں 100 ٹائمز الحمدللہ کہنے میں ایک بار بھی شکر ادا ہوتا ہے کیا؟ دل سے، صرف زبان سے ہو رہا ہے. تو دس از سو monotonous, دس از سو فیک، بس ایک ریچول. بٹ آپ پورا دن جب آپ اپنے کپڑے پہنتے ہو تو شکر ادا کرو، آپ کھانے کا ایک نوالا لیتے ہو، پانی پیتے ہو، آپ کی آنکھوں سے آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے، تب آپ کے دل سے شکر ادا ہونا چاہیے نا کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میں کل میرے پیر میں درد تھا، آج میں کھڑی ہو رہی، الحمدللہ. کل میرے سر میں درد تھا، آج میرے سر میں درد نہیں ہے، الحمدللہ. ویئر از دا ریئلائزیشن، ویئر از اپریسیشن؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ کو وہ تمہاری 100 بار کی تسبیح میں جو شکر ملا، اپریسیشن ملا، وہ کیسا ہے؟ اور یہ جو آپ دن بھر ہر چیز میں، ہر نعمت کے وقت اللہ کا دل سے شکر ادا. اس لیے آپ اب لکھ لیجئے کہ شکر ادا کرنے کے بھی ٹائپس ہیں. نمبر 1 ہے زبان سے ہم شکر ادا کرتے ہیں. نمبر 2 کیسا ہوتا ہے شکر؟ ابھی جو بتایا، دل سے. دل سے. ہاں دل سے. اور نمبر 3 ہوتا ہے وتھ یور آرگنس، جوارح کہتے ہیں جس کو. اردو والے سمجھتے ہیں جوارح؟ تھوڑی تھوڑی اردو میں سیکھ رہی ہوں قرآن سے ہی. I don't take any other special lessons, but قرآن سے ہی سیکھنے مل رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ ہے تھرڈ ٹائپ، شکر الجوارح، thankfulness expressed by the body and the limbs. آپ کے عمل سے آپ شکر ادا کرتے ہو. آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، صدقہ دیتے ہو، حج کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو، آپ کسی کی مدد کرتے ہو، آپ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بناتے ہو. تو یہ اللہ کا شکر ہی ہوا نا کہ اللہ تو نے اناج تو بھیج دیا، گھر میں پیسہ بھی ہے، ابھی میں نے اس کو کیا کیا؟ تیرے حکم سے اس کا کھانا بنایا، گھر والوں کو کھلایا. گھر ہے تو ہم اس میں گھر میں صاف صفائی کر رہے، کپڑے ہیں تو کپڑے واشنگ ہو رہے، آئرننگ ہو رہے. تو یہ ساری نعمتوں کا شکر ہی ہے جو ہم کرتے. الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ کیوں آپ راتوں کو جاگ کر اتنے اپنے پیروں میں سوجن آنے تک کی اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہو، تہجد میں کیوں آپ اتنی محنت کرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ ویری گڈ. افلا اکونا عبدا شکورا. دیکھیے اسکرین پر، افلا اکونا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ الحمدللہ. shall I not be a grateful servant to Allah؟ تو کچھ اور پہلے ہم لوگ اور دیکھ لیتے ہیں شکر اور ناشکری کے بارے میں، دین آپ لوگ کا ہوم ورک بھی. صبح میں جب ہم اٹھتے ہیں تو یہ ایک صبح کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. حدیث ہے، جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا. کیا ہے یہ دعا؟ ذرا پڑھ لو کنی اسکرین پر سے. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلیقہ خلقک، من خلقک، من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. فلک الحمد ولک الشکر. تو اے اللہ، جو تو نے صبح کی ہے اپنی نعمتوں کے ساتھ،
اور जो वादा किया तूने मिन खल्किक अपने क्रिएशन के साथ फमिनक वहदक और साथ तेरे वादा है ला शरीक लक कि हम भी तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। तो या अल्लाह फिर क्या है, तमाम तारीफ भी तेरे लिए है और तमाम शुक्र भी तेरे लिए। जो ये दुआ पढ़ ले सुबह में तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में शेयर भी कर दिया जाएगा आपके साथ इंशाल्लाह। अगर जिसे याद नहीं है तो इंशाल्लाह याद भी कर लेंगे। और अब ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल आपके साथ, जरा इसे पढ़ लो। सना, सना तुम पढ़ सकती हो क्विकली? जी बाजी, शुक्र का एक पहलू ये भी है कि जो बीमारी आई इससे ज्यादा नहीं आई, और जो बीमारी आई वो जाने वाली आई है, और जो बीमारी आई है मेरी जान पर आई है, मेरे ईमान पर नहीं आई है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। एग्जैक्टली अपनी थिंकिंग को चेंज करना, पॉजिटिव चेंज लाना है अपनी सोच में, अपनी आंखों में, अपने कान में, अपने दिल में, क्योंकि आयत यही बता रही है you will have to change your thinking, your vision, your listening। कि अगर बीमार है तो बस बीमारी की कंप्लेन नहीं लेके बैठना है, ये कहना है, क्या कहना है कि अल्लाह ये जो बीमारी आई है अच्छा है कि इससे ज्यादा सीवियर नहीं हुई, तो इसका शुक्र है कि इतनी है, इससे ज्यादा सीवियर नहीं है। जो बीमारी आई है वो तो जाने वाली है इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो आपको अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना है। व्हाई? दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव थिंकिंग। और फिर अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि बीमारी आई है मेरी जान पर, मेरे ईमान पर नहीं आई है, मेरा ईमान तो सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे तो क्या होगा, इंशाल्लाह ईमान और मजबूत होगा और बीमारी भी जाती रहेगी अल्लाह का शुक्र अदा करने की वजह से। ये क्या कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है, ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम। क्या मतलब है इसका? इफ यू आर ग्रेटफुल, अगर तुम शुक्र अदा करते रहे, ला अजीदन्नकुम, ज्यादा वर्ड है इसमें, ला अजीद, जीद ज्यादा, आई विल गिव यू मोर, मैं तुमको और दूंगा और दूंगा और दूंगा। तुम जितना शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुमको और देता ही जाएगा, देता ही जाएगा, और ईमान भी बढ़ता ही जाएगा, अल्लाह से कनेक्शन भी मजबूत होता जाएगा। अब इसके ऑपोजिट में जो नाशुक्री करेगा, तो नाशुक्री करने पर उसकी नेमतें छीन ली जाती है। अभी हमने कौमे सबा का एग्जाम्पल पढ़े कि जो शुक्र अदा नहीं करता और कंप्लेन करता है, एरोगेंट हो जाता है, तो उसकी नेमतें छीन ली जाती, प्लस क्या होता है, अजाब भी आएगा शदीद। अभी हमने पढ़े थे, लिखा आपने दोनों पॉइंट्स, प्लीज लिख लीजिए, आई विल डिक्टेट। शुक्र अदा करोगे, अगर शुक्र अदा करोगे, डैश करके लिखिए, तो मैं और दूंगा, तो मैं और दूंगा, प्लस प्लस अल्लाह राजी भी होगा, प्लस ईमान का लेवल और बढ़ जाएगा। क्या लिखा? अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं और दूंगा, और अल्लाह राजी भी होगा और ईमान का लेवल भी बढ़ जाएगा। वेरी गुड। अभी नीचे लिखिए, अगर अल्लाह की नाशुक्री की, अगर अल्लाह की नाशुक्री की तो अल्लाह नेमतें छीन लेगा, तो अल्लाह नेमतें छीन लेगा, प्लस प्लस अजाब होगा शदीद, प्लस अल्लाह नाराज। ठीक है। अभी एक हदीस हमने और भी पढ़े थे कि नाशुक्री कुफ्र है,
नाशुक्री क्या है? कुफ्र है। तो अभी आप जरा लिख लीजिए अपने पेज पर, नाशुक्री कुफ्र है। ओके, क्या लिखा? नाशुक्री कुफ्र है। हाँ, अभी उसके नीचे के लाइन पे आप है ना ऑपोजिट साइन डालिए, ऑपोजिट। हाँ, तो नाशुक्री का ऑपोजिट क्या हुआ लिखिए नीचे। क्या है नाशुक्री का ऑपोजिट? शुक्र, है ना? ठीक है। और यहाँ पर क्या था? नाशुक्री कुफ्र है। कुफ्र के नीचे ऑपोजिट करके लिखिए, क्या होता है कुफ्र का ऑपोजिट? ईमान। कुफ्र का ऑपोजिट क्या होता है? ईमान। अभी उसका सेंटेंस फॉर्म कीजिए। ऊपर का सेंटेंस क्या था? नाशुक्री कुफ्र है। अभी नीचे का सेंटेंस क्या बना? शुक्र, शुक्र, शुक्र ईमान है। वेरी गुड शमीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोनों सेंटेंस पढ़ो। नाशुक्री कुफ्र है मतलब शुक्र ईमान है। ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट है। उसका ऑपोजिट नाशुक्री कुफ्र है, इसका ऑपोजिट शुक्र ईमान है। हाँ, अब समझ में आया हमको कि शुक्र अदा करना ये हमारे ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, जब शैतान ने अल्लाह को चैलेंज दिया था, तो उसने क्या कहा था कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा और उनको क्या करूंगा? तेरा क्या बनाऊंगा? तेरा नाशुक्रा बनाऊंगा। तो ये किसकी चाल है? शैतान की चाल। तो एवरी डे हम सूरह मुल्क पढ़ते हैं, हर रात हम अल्लाह का ये क्वेश्चन सुनते हैं कि कितना कम है जो तुम शुक्र अदा करते हो। तो हमको रियलाइज होना चाहिए कि नहीं अल्लाह मैं तो कम नहीं करती, अल्लाह मैं तेरा और शुक्र अदा करूंगी, अभी भी करूंगी, रात में भी करूंगी, सुबह उठ के भी करूंगी, हर रोज करूंगी, हर वक्त करूंगी। और मैं उस कैटेगरी में नहीं आना चाहती कि जिन पर तेरा अजाब हो, जो तेरा कुफ्र करे। तो ये क्या होता है? हम अल्लाह को याद करते हैं। हम ये सूरह बकरा की आयत पढ़ चुके हैं जो स्क्रीन पर है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। फिर क्या करो? तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे याद करो तो मैं तुमको याद करूंगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो, मेरे साथ कुफ्र ना करो। मिल गया यहाँ पर आपको सबूत शमीम कि शुक्र अदा करो मेरा, और मेरे साथ कुफ्र ना करो। तो नाशुक्री क्या है? कुफ्र है। कुफ्र है। समझ में आ गया ना? और कुफ्र का मतलब क्या है? ऑपोजिट ऑफ ईमान, बेईमानी, अल्लाह पर ईमान ना लाना। यू गॉट इट? तो अल्लाह का शुक्र अदा ना करना इज एज गुड एज अल्लाह पर ईमान ना लाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगाया कमीज ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आपको यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझ हमारे आनी चाहिए कि शुक्र अदा करना ईमान का हिस्सा है, और ना शुक्री अल्लाह पर ईमान ना लाना, बेईमानी करना। आप मुझे बताओ ना, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाएगा वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में। हाँ, तो जो नाशुक्री करेगा वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में। एग्जैक्टली। तो दिस इज हाउ वी हैव टू रिलेट। और फिर भी अल्लाह इज सो अप्रिशिएटिव कि इतनी नाशुक्री करने के बाद भी अगर एक बार भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया, तो फिर अल्लाह इज सो अप्रिशिएटिव कि वो हमारी पहली सब नाशुक्रियों को माफ कर देता है। अल्लाह से यही उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह। फिर एक है हमारे घर में हमारे शौहर की हम बीवियां बहुत ज्यादा नाफरमानी करती है। सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शौहर की नाशुक्री करना एक तरह का कुफ्र है। शौहर की नाफरमानी करना एक तरह का कुफ्र है, लिख लीजिए। और फिर मुझे अब आपके वो वाले होमवर्क का इंतजार है कि आप लोगों ने एक एक एग्जाम्पल लिया कि कैसे हम नाशुक्री को शुक्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। Who will go first? हाँ जी, मैं बोलूं?
हेलो। Yes, please, Shamim. तो बाजी द होमवर्क वाज कौन सी शिकायत है जो 4 शुक्र को मिटा देती है, खा खा जाती जाती, हाँ बोलो, तुम्हारा तो क्या एग्जाम्पल है? मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया, जैसे कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, हाँ, तो मैंने लिखा मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो मेरे 4, ये जब मैं शिकायत करती हूँ तो मेरे 4 शुक्र है। पहला तो है कि मैं जिंदा हूँ, वही वो मैंने वो एक नेमत को खा जाती है। दूसरी है कि अब तक जो सेहत अल्लाह ने दी है उसका भी मैं नाशुक्र अदा कर रही हूँ कि अब तक अल्लाह ने अच्छे, अभी तक मेरे बाल बहुत घने थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसका मैं नाशुक्र कर रही हूँ। दूसरी सेकंड है कि बाकी मेरे ऑर्गन्स अच्छे चल रहे हैं ना, अगर मेरा बाल के बदले में अगर हार्ट श्रिंक हो जाता या किडनी तो क्या कर, एग्जैक्टली, बाकी ऑर्गन्स तो चल रहे हैं। और चौथा है कि अगर इतने बाल तो है, अगर पूरे बाल चले जाते, जैसे कि कीमो में पूरी बाल बॉल्ड पूरे हो झड़ जाती, जाते, हाँ पूरे बॉल्ड हो जाती तो क्या कर। एग्जैक्टली, तो ये 4 शुक्र मैं खा जाती हूँ जब मैं ये छोटा वेरी सा गुड, एग्जांपल सोचती हूँ। वेरी गुड शमीम। तो हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि थोड़े बाल झड़ रहे तो क्या हो गया, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है शमीम ने कि बाल झड़ रहे हैं, समझो समझो शमीम के बाल झड़ रहे हैं, 1 महीने से झड़ रहे हैं, 1 साल से झड़ रहे हैं, लेकिन अगर रोज सिर्फ बाल झड़ते जाए, समझो रोज 10 बाल इसके टूटते हैं शमीम के, या 15 टूटते हैं, तो आज दिन तक 1 साल में वो क्या हो जानी चाहिए थी, पूरी बॉल्ड हो जानी चाहिए थी, इजंट इट। लेकिन शमीम, हैव यू गॉन बॉल्ड? अल्हम्दुलिल्लाह नो बाजी। तो आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रोज तुम्हारे कुछ बाल नए उगते भी है। जी यू बाजी गॉट इट? जी। तो अगर सिर्फ जड़ते ही जाते तो खत्म हो जाते, इसका मतलब रोज नए उगते भी है और उसको ना हम देखते ना काउंट करते। सो हमारी थिंकिंग को ऐसे पॉजिटिव करना है इंशाल्लाह। वेरी गुड। फातिमा, तुम शेयर करो अपना एग्जाम्पल। अस्सलाम वालेकुम। बाजी, मैंने ये रियल देखी हूँ, जो मेरे घर में कोई भी आते हैं तो मतलब बोलते हैं कि मेरा पास भी मतलब मेरा पास एक ही बेडरूम है, अगर बड़ा रूम होता तो अच्छा है। तो तभी मतलब उसने कि एक बेडरूम उसको मिले, एक बेडरूम हॉल मिले है, तो उसमें भी वो नाशुक्री करते हैं। और तो मतलब उसको एक बेडरूम अल्लाह ने दिए हैं, तो आके बोलते हैं कि बड़ा घर अच्छा है, एक बेडरूम रूम है, तो इसमें उसका क्या है। मतलब एक तो उसने ना शुक्र किया, तो उसने अपना एक मतलब क्या उसके उसने पास नियामत घर है, उसको है। उसकी नाशुक्री कर दी, हाँ खा हाँ, गई। उसने ना शुक्री हाँ, कर दे क्या, उसका एक तो छत है घर में, वो बोल छत है, सकती है हाँ मेरा मेरा अपना एड्रेस है वो वेरी गुड। उसने और एक ना शुक्री का क्या, उसने अपने घर में मतलब अपने घर में जाके सुकून से रह सकते हैं। मतलब किसी को मतलब उसको साल साल भर उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, रेंट वेरी गुड, रेंट रेंट नहीं देना पड़ेगा, और चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। और क्या है, उसका एक परमानेंट एड्रेस हो गया, उसमें से पासपोर्ट निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वेरी और गुड, दूसरा क्या, वो अपने हस्बैंड व मतलब बच्चे लोग के साथ सुकून से जो भी खाना खाया, अल्लाह जो भी दे, शुक्र से अल्लाह को बोल के रह सकते, कोई डर नहीं है, नहीं ये मेरा अपना घर है। तो मुझे वेरी गुड, आके से बताए थे, तो मैंने उसको बोला आप लोगों का देख के मत बोलो, ये क्योंकि रियल हमको आके बताए कि मान कि आप लोगों का देख के आप इसमें ना शुक्रापन आप में आ जाएगा। अल्लाह तो आपको एक भी रूम दिया ना, 1 बेडरूम हॉल किचन, कल चाहे अल्लाह इसको बढ़ा देंगे। आप अपने से अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे वाले को देखो, नीचे देखो, जो लोग नीचे सोए हुए हैं उसके ऊपर तो छत भी नहीं, तब भी आपको वेरी शुक्र गुड, है। वेरी गुड, वेरी गुड फातिमा, अपने से नीचे वालों को देखना है। और ये नाशुक्री कितने शुक्र को खा गई। यास्मीन, आप बोले। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। मतलब मैं भी एक सिंपल एग्जांपल घर का ही देना चाहूंगी। स्पेशली हमारे घर में हम लोग कितनी बार अपने शौहर के बारे में कितना मतलब शिकायत करते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, मतलब मुझे सब करना पड़ता है, पानी भी दो, ये करो। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कभी कभार वैसा गुस्सा आता है तो बोल भी देते हैं हम लोग, लेकिन शुक्र भी बहुत करती हूँ अल्लाह का। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, कितने लोग हैं जिनको कैसे शौहर होते हैं कितना मारते हैं,
मतलब हाँ, और कुछ देते नहीं है, घर में काम नहीं करते हैं, Very कुछ काम good. औरतें घर तो छोड़ आपको के ये कहना है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा शुक्र करती अदा हूँ कि करती मेरे हूँ। हस्बैंड वैसे नहीं है, नहीं है, और मेरे शुक्र है अल्लाह हस्बैंड का। है, कितनी हाँ, औरतें बेवा हो कितने जाती नहीं है, है, कितना रोते कितनी की हैं, शादी अकेली नहीं रहती है। होती है, कोई हाँ, अकेली रहती है। अकेली रहती है, तो वही वो शुक्र अदा अल्हम्दुलिल्लाह, कर, वो कभी वेरी कभी गुड, वो होता है, बट नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शुक्र अल्लाह वेरी का, गुड, शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, नाइस। सना, बाजी, माय कंप्लेन इज आल्सो वेरी जनरल कंप्लेन, बट अल्लाह माफ करे मुझे कि बच्चे बच्चे छोटे व्हाटएवर वो सताते हैं बहुत हमको, तो माय बहुत परेशान रहती है बच्चों से। सो इवन लाइक देम, लाइक एवरी मदर, आई आल्सो समटाइम्स मैं एकदम बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ। So every time I feel that every time I complain to Allah that my kids are naughty or they are doing uncontrollable, they are disobedient, तो ये शिकायत ये शुक्र को खा जाती है that Allah has blessed us with children, and so many childless married couple are waiting for many years and they are longing to have parents and they don't have children. So ये शुक्र इसको खा जाता है, एक वेरी ये गुड, नाशुक्री। सेकंड पॉइंट इज दैट जब हमारे बच्चे नॉर्मल है, इंटेलिजेंट है, वो लोग नॉटीनेस इसलिए करते क्योंकि दे आर स्मार्ट, or some people, some family and friends are dealing with children who are who have some mental disability, special children, yeah, yes, and they have to be, they're grown up but they are dependent on their parents for feeding, washroom, everything. So this nashukri is eating up the shukr that alhamdulillah Allah has blessed me, all of us, with normal children. And alhamdulillah, third point is that when I complain to Allah that my children don't study, like they are not getting good grades, ye wo, you're not topping the class, ye wo, then I am just eating that shukr that alhamdulillah these children are born, my children are born with proper sense organ, they can hear, speak, they can run around normally, they are going to normal schools, they are unlike the children who have to go to special schools or they have some disability for which they are like majorly dependent on the parents. And when children हमको परेशान करते हैं, हम कहते हैं अल्लाह ने ऐसा बच्चा क्यों दिया मुझे, ना दे गेट एंग्री, एकदम परेशान होकर के, तो हम ये भूल जाते हैं कि कितने पेरेंट्स के बच्चे हुए किसी बीमारी के तहत, किसी एक्सीडेंट के तहत, अल्लाह ना करे उनसे उनका बच्चा छिन जाता है, then those parents live in that pain forever in their life, they will never forget. So Allah na kare, we are so blessed and we don't thank Allah enough, we only complain. वेरी गुड सना, अच्छे एग्जाम्पल शेयर किया आप लोगों ने कि कैसे हमारी नाशुक्री शुक्र को खा जाती है, हमारी कंप्लेंट्स की वजह से हम कितने नेमतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका एक्चुअली शुक्र अदा करना कितना इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लोग भी आप अपने एग्जाम्पल शेयर कर सकते हो हमारे साथ, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए आप जब भी चाहे, इंशाल्लाह। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आप ये सोचिए कि हर रात जब हम सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं तो अल्लाह की ये शिकायत हमसे हो रही है, उसका हम क्या कर रहे हैं, और हमको पता भी नहीं, हमने सूरह मुल्क पढ़ के रख दिए, खबर भी नहीं हुई कि अल्लाह ने हमसे शिकायत की कि तुम नाशुक्री हो, खबर भी नहीं। ओके, तो जब भी अब ये जो पारा जिसमें आप नोट्स बना रहे हो, इसी पारे को लेकर बैठे सूरह मुल्क पढ़ने के लिए, ताकि ये पॉइंट्स हमारे हाईलाइट हो और फिर हम उस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करें इंशाल्लाह। आयत 24 पे चलते हैं, काइंडली शेयर द स्क्रीन। आयत 24, कुल हुवल्लज़ी, कुल आप कह दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ वो अल्लाह, अल्लज़ी वो जिसने, अल्लाह इज द वन, ज़रअकुम जिसने फैलाया तुमको, अल्लाह ने फैला दिया तुमको, फिल अर्दी जमीन में कैसे अल्लाह ने फैला दिया है तुमको, व इलैही और उसी की तरफ, अल्लाह ही की तरफ, तुहशरून तुम सब इकट्ठे किए जाओगे। तुहशरून में हशर वर्ड है, हशर का मतलब आपने सुने होंगे, हशर का मैदान, तो हशर का मतलब होता है जमा करना, सबको एक साथ खड़ा करना, इकट्ठा करना, टू गैदर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर। इस आयत में क्या पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही वो जात है जिसने तुमको
हर एक को एक यूनिक पर्सनालिटी दिया है ना, हम में से हर एक अलग है, खास है, अल्लाह की मखलूक है ना, तो अल्लाह के लिए तो खास है हम सब। फिर अल्लाह ने हमको फैला दिया जमीन में, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कोई कौन से कॉन्टिनेंट में है, कोई कौन से कंट्री में है, कोई नॉर्थ पोल के साइड है, कोई साउथ पोल के साइड है, कोई इक्वेटोरियल रीजन में है, कोई अमेरिका में है, जापान में है, चाइना में है, छोटे 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 गांवों में है, कोई पहाड़ों पर है, कोई समंदरों के बीच में रहता है। तो अल्लाह ने जमीन के चप्पे चप्पे पर इंसानों को बसा दिया, एवरी इंच ऑफ द अर्थ। फिर अल्लाह ताला बिखेरने और फैल जाने के बाद क्या करेगा, सबको समेट लेगा। हर एक की जबान अलग, हर एक की सोच अलग, रंग रूप, कलर, रेस, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, रीजन्स, सबकी शक्लें अलग, हर एक की फिंगरप्रिंट्स अलग। आज ही मुझे मम्मी ने भेजा था एक पोस्ट जिसमें लिखा था कि आपके फिंगरप्रिंट्स हर एक के अलग तो है, लेकिन जब आपके फिंगर्स पर कभी कोई चोट आ जाती है और वहां की स्किन आपकी जख्मी होकर फिर वो स्किन निकल जाती है, और जब आपकी दूसरी स्किन वहां पर बनती है, फिर आपका वो आपकी उंगली का जख्म ठीक हो जाता है, तो आपकी जो पहले की फिंगरप्रिंट होती है बस वैसी ही सेम टू सेम फिंगरप्रिंट फिर से बन जाती। सुभान अल्लाह, ये कौन कर सकता है सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने ऐसे तुम सबको अलग अलग बनाकर पूरी जमीन पर बिखेर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, वह इलैहि तुहशरून, कि कयामत के दिन हम तुम सबको फिर से जिंदा करेंगे, फिर से लाकर इकट्ठा एक जगह जमा करेंगे। इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल अगर समझना है तो एक फार्मर है, एक किसान क्या करता है अपनी खेती में खड़े होके, जब पूरी जमीन को जोत लेता है, प्लो कर लेता है, फिर उसे जो अनाज बोना है वो अनाज क्या करता है, पूरी जमीन में बिखेर देता है ना, खड़े होकर हर जगह पर वो अनाज के दाने बिखेर कर बो देता है, सोइंग द सीड्स। और जब वो पूरी फसल खड़ी हो जाती है ना, और जब उसका काटने का वक्त आता है, फसल में जब अनाज लग जाता है और उसे काटने का बोने का वक्त काटने का नॉट बोने का काटने का वक्त आता है, तो क्या वो फार्मर कहेगा कि जाने दो अब मैं नहीं काटता? क्या ऐसा हो सकता है? मैं नहीं अपनी फसल को काटता, नहीं निकालता मैं इसमें से अनाज, क्या ऐसा कोई भी किसान करेगा? बताओ। नहीं बाजी, बिल्कुल नहीं। तो उसका मकसद ही क्या है, अनाज बिखेरने का और जो सीड्स सोइंग करने का मकसद ही ये है कि आखिर में जब फसल आएगी, फ्रूट्स उस पे लग जाएंगे, तो मैं वो समेट लूंगा, काट लूंगा और फिर उससे फायदा उठाऊंगा। वैसे ही अल्लाह ताला ने हम सबको जमीन में फैला दिया, बिखेर दिया। अब अल्लाह ताला ऐसे कैसे करेंगे कि हमको फिर से जमा ना करेंगे, इकट्ठा ना करेंगे? तो बस ये जैसे दुनिया का कानून है वैसे अल्लाह का कानून है, उसी के पास लौटना है। अब ये जो काफिर लोग हैं वो तो इसी बात पर अड़े हुए हैं ना, वो इसी बात को तो नहीं मानते कि कैसे अल्लाह दोबारा हमको जिंदा करेगा, कैसे, क्यों। तो नेक्स्ट आयत में इसी का जिक्र है, आयत नंबर 25 में। वयक़ूलूना, वो और यक़ूलूना वो कहते हैं, कौन? मक्के के मुशरिक जो नहीं मानते, वो कहते हैं मता, कब होगा, मता कब होगा, when will it happen, हाजा ये, अल वादू जो वादा, प्रॉमिस किया गया है, ये वादा कब बाजी, यू आर इनऑडिबल।
मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है बाजी। कहाँ से गई थी? ये पूरी आयत में करा चुकी तो नहीं आई आवाज? वादा से बाजी। ओके। वयकूलूना, और वो कहते हैं, मता, कब होगा, हाजल वादू, ये वादा, कयामत का वादा पूरा, इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर ये कयामत की बात सच्ची है तो बताओ कब होगा ये वादा पूरा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार वो पूछते थे कब आएगी कयामत, आप रोज कयामत की बात करते हो, कब होगी कयामत? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब सिखाया इसका, कि वो हम देखते हैं आयत नंबर 26 में। कुल, इनके क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल, रिप्लाई टू देम, इन्नमल इल्मु, बेशक ये इल्म, ये नॉलेज, इंदल्लाह, सिर्फ अल्लाह के पास है। बेशक ये नॉलेज अबाउट द कयामत, कि कयामत कब आएगी, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ इंदल्लाह, अल्लाह के पास है। व इन्नमा, और बेशक, अना, मैं कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूँ, नज़ीरुम, मैं हूँ सिर्फ एक खबरदार करने वाला, एक वार्निंग देने वाला। मुबीन, कैसी वार्निंग? खुली, क्लियर। आई एम हियर ओनली टू convey the message, to inform you, alert you about the day of Qiyamah, the resurrection. मैं तो सिर्फ खबरदार करने के लिए भेजा गया हूँ, मुझे नहीं मालूम, I don't know, this is the answer, कि कब होगी कयामत, I don't know, ला अदरी, अरबिक में कहते हैं ला अदरी, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आप सीधा बोल दो, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ये जवाब देने में कि मुझे नहीं मालूम, ना शर्माने की जरूरत, क्योंकि कयामत का इल्म अल्लाह के सिवा और किसी के पास नहीं। सिमिलरली, अगर आपको कोई ये कहे कि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको भविष्य बता सकता हूँ, तो आप उससे एक ही क्वेश्चन करना कि तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारी मौत कब आने वाली है, व्हेन आर यू गोइंग टू डाई। अगर वो बता सकता है कि व्हेन ही इज गोइंग टू डाई, दैट मींस ही हैज एनी नॉलेज। सो ये नॉलेज किसी के पास भी नहीं दिया है अल्लाह ने कि कब किसी की मौत होगी, कब कयामत आएगी, किसका बच्चा कब पैदा होगा, वो लड़का होगा या लड़की। आपके सोनोग्राफीज और आपके मशीनरी सब फेल है। फिर बारिश कब आएगी, कहाँ आएगी, कितनी आएगी, नो वेदर फोरकास्ट कैन से दैट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये गैब का इल्म, ये जो अल्लाह के फैसले हैं, ये अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ अपने पास इसका इल्म रखा है, कोई ये नहीं बता सकता। इसीलिए जो कोई ये कहे कि मेरे पास ये गैब का इल्म है, भविष्य बता सकता हूँ, फॉर्च्यून टेलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, इसीलिए इनके पास जाना शिर्क है, इनसे इंफॉर्मेशन हासिल करना शिर्क है। क्यों? क्योंकि देखिए स्क्रीन पर लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। सही बुखारी की रिवायत है ये, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। इसलिए आप किसी के पास ना जाए और किसी की बात ना सुने। हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे को मालूम है सब। आप और मैं भी बातें करते करते ऐसी बातें कर लेते हैं, मुझे मालूम है उसने ऐसा क्यों किया। अरे आप और मैं क्या, अल्लाह है नाउजुबिल्लाह। हमको किसी के दिल की बात भी कैसे मालूम, जो अजम्पशंस हम करते हैं, इसे क्या कहते हैं, अजम्पशंस। उर्दू में क्या कहते हैं अजम्पशंस को? अनुमान लगाना बाजी।
हाँ, हिंदी में कहते हैं अनुमान लगाना. वेरी गुड. तो हम किसी के बारे में अंदाजे, तो ये अंदाजे लगाना ये भी एक तरह का कुफ्र है, ये झूठ है. जो हम अपने दिल में किसी के बारे में सोच लेते हैं, ये सब झूठ होता है. और अल्लाह के सिवा किसी को गैब का इल्म नहीं है. मैं यहाँ से पढ़ के सुनाती हूँ आपको कि काफिर जो मर कर दोबारा जिंदा किए जाने पर ईमान नहीं लाते, उनका यकीन नहीं होता, वो दूसरी जिंदगी को नामुमकिन समझते हैं. उनका बयान सुनकर एतराज करते हैं कि अच्छा कयामत आएगी, तो फिर हमें बताओ कब आएगी कयामत. अगर आप सच्चे हो तो गिव अस द डेट एंड टाइमिंग. तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, जवाब दे दीजिए कि इसका इल्म मुझे नहीं कि कयामत कब आएगी. ये तो सिर्फ और सिर्फ वही गैब का जानने वाला, सिर्फ वही जानता है. ओनली अल्लाह नोज द बेस्ट. मुझे तो सिर्फ इतना बताया गया है कि कयामत आएगी जरूर. मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि कयामत आएगी जरूर, आकर रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें खबरदार कर दूं और उस दिन की हौलनाकियों से तुम्हें अलर्ट कर दूं. मेरा फर्ज तो सिर्फ इतना ही है कि तुम्हें पहुंचा दूं, जिसे मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं अदा कर चुका. क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपना मैसेज पहुंचा चुका, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी. फुल स्टॉप. अब तुम मानो या ना मानो, दैट इज अप टू यू. अल्लाहु अकबर. आपका और मेरा भी क्या काम है फिर? आपको पता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से कयामत की बात करते, तो सहाबा इकराम क्या क्वेश्चन करते? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या क्वेश्चन किया था जब ऐसे ही कयामत की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने की? क्या उन्होंने ये पूछा कि कयामत कब आएगी? नहीं, उन्होंने ये पूछा कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, हम अपने आप को इससे कैसे बचाएं. वेरी गुड कनीज, यू हैव अ गुड मेमोरी, माशाल्लाह. अल्लाह उसमें बरकत दे. तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये पूछा कि अच्छा तो हम इसके लिए क्या तैयारी करें? हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर द डे ऑफ क़यामा? हमें करना क्या है, करने का काम बताओ. वो कब आएगी, क्या आएगी, टाइमिंग, डेट, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो इतनी हौलनाक चीज है कयामत, तो हमें उसकी क्या करना है, तैयारी करनी. इसलिए हर रात जब हम सूरह मुल्क पढ़े तो हम ये सोच ले कि मुझे क्या पता रात में मैं सोऊं और मेरी मौत हो जाए, तो एम आई रेडी? तो मुझे अभी सोते वक्त सबसे पहले क्या करना है फिर? अगर रात में मेरी मौत आ जाए, दैट मीन्स इट इज द फर्स्ट स्टेप टू कयामत, isn't it? वो मिनी कयामत ही तो है मेरी मौत. तो फिर मुझे इस वक्त क्या करना है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. अल्लाह से खूब तौबा, माफी, अस्तगफार करके सोए, अल्लाह का शुक्र अदा करके सोए, दिल में से हर बुराई कीना निकाल कर सोए, ताकि अगर मौत हो जाए तो फिर मैं अल्लाह की हमद और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती हुई, तौबा करती हुई ही उठूं इंशाअल्लाह, कि मेरा आखिरी अमल ये हो. इस तरह हम गौर व फिक्र करते हुए सूरह मुल्क पढ़कर सोएंगे, ताकि उसका हमें फायदा भी हो इंशाअल्लाह. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.